Hi guys, this is Rotarian Protractor Ramya Pillai, President Rotaract Club of Navi Mumbai Industrial Area, RID 3142 for the year 2021-22. I am pretty sure you all might have watched the trailer of our initiative Caged Until Broken, and you all might be wanting to listen to further of the interview. So before you all move on to the interview part, I just want to say that the entire interview there are a lot of sensitive statements that have been passed or sensitive incidences that have been shared, so please be very mindful about it, and please listen to this with an open mind, and try to understand the situations as well. Now our main aim as to why we are doing this initiative is to sensitize the youths, because we are apparently the future of this nation, and unless until we don't understand the impact of such things, I don't think so anyone else would understand, and we need to be alert as well within our surroundings. ज़्यादा शक नहीं करना है, but of course we have to be alert about a lot of things. This initiative is very very close to my heart and to my team's heart as well, because during the entire interview, if you would observe, I wouldn't have even looked once into the camera, because I was within that emotional state of what all things have been shared with me, and I legit had tears in my eyes at some point of time, and I knew that if I looked towards the camera and I had my president-elect standing over there, Rahul, and I would have started crying, which I didn't want. So again, please be very very mindful about the information that you are going to listen to, and try not to judge anyone out of it, and I hope that you will share this with further people as well, and help Rescue Foundation in whichever way that it's possible for you all, whether it is through sensitization, whether it is through spreading of awareness, or whether it is through helping them with getting donations or helping them in organizing few things. I'm pretty sure they'll be more than happy to have all the other organizations helping them as well. So thank you. मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है और मैं जर्नलिस्ट थी। 1993 की बात है, तभी एक फिल्मी हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने जाने वाले थे और वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाना था। तो कोई मेरे जो मेल कलीग थे वो कोई अवेलेबल नहीं थे, तो मैं गई। तो एक मेल कलीग ने मजाक भी किया कि तुम लड़कियों के बदनाम गली में जाएगी। तो मैं बोली हाँ मैं जाऊँगी, मुझे देखना है बदनाम गली कैसी होती है। और जब मैं पहली बार वहाँ पे गई और तभी वो हीरो को राखी बांध रहे थे सेक्स वर्कर, उनको मिठाई बांट रहे थे, वो हीरो साड़ी दे रहे थे। तभी मैंने वहाँ पे कमाठीपुरा गली नंबर 12, 13, 14 ऐसा लिखा था। मैं बोली अभी तो ये प्रोग्राम तो चल रहा था पुलिस चौकी में, लेकिन मुझे गली में जाना है। तो मैं गली में गई और जब मैं अंदर गई तो एक कोठा आया, ब्रोथेल, वहाँ पे पर्दा लगा था। और अंदर में गई तो वहाँ पे लकड़ी की छोटी छोटी केबिनें बनी थी, उसको वो पिंजरा बोलते हैं। और उसमें 10-12 साल की लड़कियाँ लिपस्टिक कर रही है, मेकअप कर रही थी। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि बहुत छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं और वो सब कर रहे हैं, कोई सो रही है, कोई रो रही है। और मैं अंदर गई और मैंने पूछा कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? तभी वो लड़की ने बोला कि नहीं, हम लोग तो यहाँ पे गंदा काम करते हैं। तो मुझे लगा कि आपकी मम्मी सेक्स वर्कर होगी और आप पढ़ाई करते होगे। बोले नहीं, हमारे माँ बाप तो गांव में है, हमको दलाल ने ला के यहाँ पे बेच दिया है। तो मैंने पूछा ये अच्छा लगता है? बोले नहीं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं बोली क्या करना चाहते हो? बोले घर जाना चाहते हैं। मैं बोली चलो भाग जाओ यहाँ से। बोले नहीं हम नहीं भाग सकते, क्योंकि गली के नाके पे जो गुंडे खड़े हैं, जो पिम्प्स खड़े हैं, वो हमको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो मैं बोली मैं आपको टिकट करवा देती हूँ। और ये जो बातचीत चल रही थी उतने में वहाँ पुलिस चौकी में जो प्रोग्राम चल रहा था रक्षाबंधन का, वो ख़त्म हो गया।
घरवालियाँ आने लगी और मैं लिखती जा रही हूँ क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट थी और मुझे जानना था। और तभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। उन्होंने बोला कि गरीब राज्यों से, गरीब देश से लड़कियों को लाया जाता है, यहाँ पे बेच देते हैं और हमें घरवाली बाहर नहीं निकलने देती है। बोले मैंने 50,000 में ख़रीदा है, ये तो तुम्हारा कर्जा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। तो मेरे लिए वो एकदम शॉकिंग वाली इंसिडेंस था। और मैं ऑफिस गई, वो सब न्यूज़ दिया और घर आके मुझे बस वही याद आ रहा था क्योंकि वो लड़की 10-12 साल की लड़कियों में मुझे अपनी बेटी की चेहरा दिखाई दिया। और जब मैंने अपने हस्बैंड से बात किया तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये तुम्हें आज टेलीपैथी हुई क्योंकि मैं 1 वीक से ये बारे में तुम्हारे साथ बात करना चाहता था। क्योंकि मेरे शोरूम में एक जो सेल्समैन है वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की सेक्स वर्कर है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं। और मेरा सेल्समैन बार बार बोल रहा है कि आपकी वाइफ जर्नलिस्ट है, उस पुलिस और पॉलिटिशियन को पहचानती है, तो आप उनको बोल के मुझे कुछ हेल्प करवा दीजिए। तो यही हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इनके लिए काम करना है। और फिर हम एक लड़की को बचाने के लिए जब गए कमाठीपुरा में, तभी वहाँ पे 15 लड़कियाँ बाहर आई और बोले कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें नर्क से निकालो, हमें यहाँ नहीं रहना है। और तभी हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि अभी एक लड़की तो वो जो जिसको रेस्क्यू करने वाले थे वो तो वो लड़के से शादी करेगी, तो हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। लेकिन ये 15 लड़कियाँ का, और पुलिस बोली कि अरे ये तुम्हें क्या समाज सेवा का भूत चढ़ा है, तुम एक लड़की को रेस्क्यू करने आए थे, एक को लो, बाकी का क्या है। लेकिन हमने बोला कि नहीं, लड़कियाँ का ह्यूमन राइट है, अगर वो नहीं रहना चाहती है तो आप वहाँ नहीं रख सकते। और पुलिस स्टेशन में लाए और डायरी करके दे दिया हमें कि ऐसे बिनवारिस हमें मिल गए और हम सोशल वर्कर को हैंडओवर कर रहे हैं। वो सब लड़कियाँ हमें दे दी। तो वहीं से ये हमारे लाइफ का चेंजिंग गियर था, जो कि एक जर्नलिस्ट को फिर पूरा एक्टिविस्ट बनने के लिए। तो तभी मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि इनके लिए काम करना है। तो हस्बैंड ने बोला मैं मेरा बिज़नेस बंद कर देता हूँ। वो मिलिट्री से आए ही थे, मिलिट्री में 15 साल रहे थे और आके अभी 1-1.5 साल हुआ था जो इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो मैं बोली अगर आप अपना बिज़नेस बंद करते हो तो मैं भी जर्नलिज्म में रिज़ाइन करती हूँ, दोनों साथ मिल के काम करते हैं। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें कमाना, 2 में से एक को कमाना भी पड़ेगा, और तुम जर्नलिस्ट हो तो पुलिस और पॉलिटिशियन से तुम्हारा अच्छा पहचान है, तो ये हम दोनों मिल के काम करेंगे, लेकिन आप अपना ये करियर जर्नलिज़म की कंटिन्यू करो। और फिर हमने यही काम शुरू किया। मेरे हस्बैंड दिन में कस्टमर बन के जाते थे, कोई कस्टमर जहाँ पे भी छोटी लड़की दिखाई देती थी या डरी घबराई हुई लड़की दिखती थी तो उनके साथ बात करते थे, मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर हम पुलिस के पास जाते थे, रेस्क्यू करते थे, अपने घर पे लाते थे। फिर जो लड़की टूटा फूटा, जो इसके पास जो भी एड्रेस मिलेगा वो एड्रेस पे हम पहुँचाते थे। अगर उसका घर नहीं मिला तो फिर हम गवर्नमेंट के कोई शेल्टर होम में रखते थे या गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करते थे। बाद में धीरे धीरे एनजीओ के साथ कांटेक्ट करने लगे, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ऐसे कर कर के हम गवर्नमेंट और पुलिस के साथ काम करते रहे। तो हमने अपने घर में ही ये संस्था शुरू कर दिया था, क्योंकि जो लड़कियां रेस्क्यू होती है उसको हम पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। और पहले तो एफआईआर वगैरह कुछ नहीं होता था, ऐसे ही डायरी करके पुलिस हमको दे देती थी। हम अपने घर लाते थे, फिर उसका घर ढूंढते थे, लेकिन उसका घर ढूंढना, तभी तो ना कंप्यूटर थे ना तो ये गूगल मैप वगैरह कुछ भी, मोबाइल भी नहीं था, तो बहुत तकलीफ़ आती थी। एसटीडी फ़ोन करने के लिए भी तो एमटीएनएल से ही मांगना पड़ता था, एसडी कॉल भी इतना। तो नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ की लड़कियाँ होती थी उसका घर ढूंढ के उसको घर तक हम पहुँचाने की ये कोशिश करते थे। यही सब हम काम करते रहे। मैं जर्नलिज़म में थी और मेरे हस्बैंड यही काम करते रहे। बाद में हमें 2000 में रिबॉक कंपनी ने रिबॉक ह्यूमन राइट अवार्ड $1 लाख का दिया। तो फिर हमारे छोटे घर में जो
चलाते थे शेल्टर होम। तो फिर हमने ये हमारी जगह लिया और फिर हम यहाँ 2003 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। ऐसे हम अपना काम करते थे। बहुत हमें थ्रेट्स आती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड रेस्क्यू ऑपरेशन करके आ रहे थे, तभी एक्सीडेंट में उनको मार दिया गया। वो पुलिस के रिकॉर्ड में आज भी वो एक्सीडेंट बता रहे कि एक्सीडेंट, लेकिन आज भी मुझे डाउट है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो उनका मर्डर था। तो फिर मैंने बोला कि हम तो हिम्मत हारेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए लगा था कि अभी क्या करें, लेकिन जो हमारी रेस्क्यू जो लड़कियां थी वो लीडर बन चुकी थी और वो हमारी रेस्क्यू टीम में भी वही सब लोग थे। तो मैं बोली कि नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ और मुझे कुछ हो जाए तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। तो बोले नहीं, हम साथ मिल के काम करेंगे। तो हमने 2005 में हमारे लिए ऐसी सिचुएशन थी कि चारों ओर से हमें थ्रेटिंग कॉल आते थे। हमारे पे यहाँ पे भी स्टोन थ्रोइंग हुआ था, हमला हुआ था। बाद में गवर्नमेंट ने हमें 24 आवर्स पुलिस प्रोटेक्शन दिया और हमने ये काम शुरू रखा। आज तक हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन ने 6000 से ज़्यादा लड़कियां और महिलाओं को बचाया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां बोलते हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र की, और 9000 से ज़्यादा लड़कियां और महिलाओं को हमारे शेल्टर होम में हमने उनका जो रिहेबिलिटेशन होता है उसकी प्रोसेस शुरू करके आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अच्छी अच्छी जगह पे है। कोई फॉरेन गई है, कनाडा में नर्स बन के गई है, या कोई टीचर बनी है, कोई रिक्शा चलाती है, कोई टैक्सी चलाती है, कोई ब्यूटिशियन बनी है, कोई हाउसकीपिंग हॉस्पिटैलिटी में काम कर रही है। लेकिन हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन ने यही जो जो फोर्सफुली जिसको बनी है, फैशन डिज़ाइनर बनी है, ग्रेजुएशन किया है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अच्छा ये नाम कमाया है, तो वो जो सीख के टीचर बनी है वो अभी लड़कियों को सिखा रही है। तो अभी हमारी टीचर ट्रेनर वो हमारी सर्वाइवर ही है। अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे एक क्वेश्चन था कि रेस्क्यू फाउंडेशन सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है या इंडिया के हर एक कोने में, मतलब अलग अलग कोने में है? रेस्क्यू फाउंडेशन ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करता है। वाह। हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड है, हम मोबाइल टीम भी उसको बोलते हैं। जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन आती है वहाँ पे हमारी टीम जाती है और रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। हमारे 4 शेल्टर होम है, जैसे एक मुंबई में है, एक पूना में है, एक गुजरात की बॉर्डर पे है, एक दिल्ली में है। हमारी दिल्ली की टीम नॉर्थ का पूरा वो ये करती है। यहाँ पे वेस्ट जोन है, वो बाकी के इंडिया के जो पार्ट्स में है, गुजरात, MP, इवन बेंगलोर, कलकत्ता, जहाँ जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, हम पंजाब, हरियाणा, सब जगह पे हमारी मोबाइल स्क्वाड जाती है। हमारे 100 से ज़्यादा हमारे पास स्पाई है जो अंडर कवर जाते हैं हिडन कैमरा पहन के और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। फिर हम पुलिस के देते हैं और पुलिस के साथ जाके हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद FIR होती है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। कोर्ट के ऑर्डर से लड़की हमारे यहाँ आती है। तो हम पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के साथ काम करते हैं। स्टेक होल्डर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, चाइल्ड लाइन से लेके और पुलिस तो होती है। हमारा हर एक केस में स्टेट है कॉम्प्लेनेंट होती है, हम पंच विटनेस बनते हैं। ओके। हाँ, तो जो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज हमारे सब शेल्टर होम है। हम इंडिया में पहला ऐसा NGO है जिसको प्रोटेक्टिव होम चलाने का लाइसेंस मिला हो। क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होम है और यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करनी होती है और इनका केयर एंड प्रोटेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। यहाँ जो भी हम क्रिमिनल्स के हाथ से छुड़ा के यहाँ पे बच्चियों को लाते हैं, तो इतना इजी काम नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट और पुलिस सब जगह से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, अमेजिंग। सो मैम, आपने ये शुरू किया था इन 1993 में 1993 एंड अभी है 2022। हाँ। तो
ये इतने टाइम स्पैन में आपने कुछ चेंजेस देखे हैं इनटू फ्लैश ट्रेड, मतलब क्या कम हुआ है कुछ रेशियो, या क्रूरता कम हुई है, ऐसा कुछ आपने देखा है, या वैसे का वैसा ही है सेम? देखिए, चेंजेस 30 सालों में ये आया है कि पुलिस सेंसिटाइज हुई है, लॉ एंड जुडिशरी सेंसिटाइज हुई है, लेकिन डिमांड कम नहीं हुई है। डिमांड कम नहीं हुई है, इसीलिए सप्लाई है। राइट। अच्छा, पहले पहले जो जितनी छोटी उम्र की लड़कियां होती थी उतनी लड़कियां अभी फ्लैश ट्रेड में, मतलब जैसे रेड लाइट एरिया में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अलग नाम से, समझो स्पा चला रहे हैं या मसाज पार्लर है या अलग अलग नाम से। तो ट्रेंड वो चेंज हुआ है कि जो फॉकलैंड रोड है या कमाटीपुरा है, वही वही रेड लाइट एरिया था, अभी वो एक रेड लाइट एरिया नहीं रहा है, अभी तो चारों ओर स्प्रेड हुआ है। तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्टी बड़ी है। लेकिन एक ये भी है कि हमें लोगों में अवेयरनेस आने लगी है। पहले जब हमने 25 साल पहले जब हमने शेल्टर होम शुरू किया तो हमारे आसपास के लोग ही हमारे लिए मेरे लिए एक चैलेंज थी कि तुम ये सेक्स वर्कर को हमारे बीच में लाओगे, हम यहाँ पे पूरा मामला बिगड़ जाएगा वगैरह। लेकिन आज वो लोग ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो वो चेंजेस हुआ है कि सोशल स्टिग्मा जो पहले था उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं हुई है, इसीलिए सप्लाई कोई कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट समझो कि नेपाल से हम बहुत नेपाली लड़कियों को रेस्क्यू करने लगे, तो नेपाल से बंद हुआ, नेपाली जैसे फेस वाली लड़कियां आने लगी दार्जिलिंग से, नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से आने लगी, आसाम से आने लगी। फिर वहाँ पे भी बहुत सारी रेड करने लगे तो बांग्लादेश से आने लगी, फिर म्यांमार से आने लगी। अभी तो 5 देशों की लड़कियां हमारे शेल्टर होम में है। थाईलैंड है, उज़्बेकिस्तान है, ऐसे अलग अलग कंट्री की लड़कियां हमारे देश में हैं, हमारे शेल्टर होम में है। तो मैम अभी जैसा आपने बोला ये अलग अलग देशों की लड़कियां हैं, तो क्या उनको मतलब झूठ बोल के लाया जाता है या उनको किडनैप किया जाता है, या मतलब कैसे वो आती है यहाँ तक? क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। इंटरनली तो भी लोग कहीं से लेके आ सकते, बट आउटसाइड कंट्री से थोड़ा मतलब कैसे लेके आएंगे वो उन्हें? देखिए, नेपाल बांग्लादेश में तो खुली बॉर्डर है, राइट। तो नेपाल की लड़कियां तो बिना पासपोर्ट वीज़ा आ सकती है। बांग्लादेश की लड़कियों को भी इलीगली ही लाते हैं ट्रैफिकर। बाकी देश है जैसे कि थाईलैंड है या रशियन लड़कियां भी बहुत आ रही है, तो वो लड़कियां को पासपोर्ट वीज़ा के साथ लाते हैं। ओके। लेकिन बोलते डोमेस्टिक वर्क मिलेगा या तो स्पा में, मतलब कोई अलग अलग डिसेंट जॉब मिलेगी, ऐसा बहाना करके लाते। ट्रैफिकर उसको किडनैप करके ही लाते, या तो प्रेम की जाल में फंसा के लाते, या शादी करके, या कुछ भी करके। और जब लड़की एक बार इंडिया में जब आती है तभी उसका पासपोर्ट वीज़ा, मतलब पासपोर्ट ही ले लेते हैं। तो लड़की मजबूर हो जाती है कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, और लड़की को इतना धमका के रखते कि देख तू इलीगल माइग्रेंट है, तेरे पास अभी यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है, और अभी तेरे सर पे तो एरंडी का लेबल लग गया है, तुझे ये काम करना ही है, तू 6 महीना 1 साल काम कर, बाद में फिर तेरे को तेरे देश में भेजेंगे। और 6 महीने में या 1 साल में वो लड़की के पास इतने सारे कस्टमर, मतलब दिन के 20-20, 25-25 कस्टमर होते हैं, इतने कस्टमर, मतलब उसका हर 1 घंटे में उसके ऊपर रेप होता है। ओके। सो मैम देयर इज़ वन, एक और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि अभी आप जब रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो मतलब कमाटीपुरा हो गया या कोई और एक एरिया हो गया, तो क्या वहाँ पे एक हेड रहता है, और अगर वो हेड रहता है तो अगर जब आप वहाँ से रेस्क्यू करते हैं तो क्या वो आपको मतलब कैसे ट्रीट करते हैं? लाइक आई एम श्योर आपको शायद थ्रेटनिंग आता रहेगा, बट व्हाट इज़ द लेवल, क्या लेवल है वो डेंजर का? देखिए, ये तो क्रिमिनल की पूरी सिंडिकेट है, और इनके ये जो चला रहे हैं इसमें गवर्नमेंट भी कहीं चाह रही है कि हमें रेड लाइट एरिया बंद नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर रेड लाइट एरिया बंद कर दिया तो रेप केस बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये जो क्रिमिनल्स है उनको इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिल रही है, या तो हमारे लॉ में इतनी लॉ फॉल्स है कि वो जो ट्रैफिकर है वो पकड़ा नहीं जाता है।
यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन करना इजी नहीं है, लेकिन हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही जाते हैं। पुलिस के बिना हम रेस्क्यू कर नहीं सकते। उसमें भी कभी पुलिस के पास अगर स्टाफ नहीं है, व्हीकल नहीं है, तो हमें थोड़ी देर हो जाती है और उतने में भी वो लड़की एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम विथ पुलिस प्रोटेक्शन गए हैं, लेकिन समझो कि हम 5 हमारी रेस्क्यू टीम है के मेंबर है, 10 पुलिस है, हम 15 जन है, लेकिन हमारे सामने 500 जन का मॉब आएगा तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत बड़ा मॉब आ गया हो। अभी जस्ट 3 दिन पहले भिवंडी में मास रेस्क्यू ऑपरेशन था, पूरा उसके लिए सब तय हो गया था। वहाँ पे छोटी लड़कियाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, पूरा मैपिंग हो गया था किस तरह से जाना। सब तरह से हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुलिस, वॉलंटियर, सब लोग, चाइल्ड लाइन, सब लोग गए थे, लेकिन एक भी लड़की नहीं मिली, क्योंकि इतना बड़ा मॉब आ गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने उन्हें शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो जब एक घर हम टारगेट करते हैं तो एक घर में जाते हैं। अगर हम 15 फोर्स गए तो एक घर में उनके दलाल हो गए या तो कोई मैनेजर होगा, तो वही टाइम उनको अरेस्ट कर लेते हैं और लड़की को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर समझो कि एक साथ में एक पूरी लेन जो कवर करनी है, ऐसा करने जाते हैं तो पूरा मॉब आ जाता है। राइट। तो वो इतने इक्विप्ड है कि उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इवन हम लोग स्ट्रीट में एंट्री करते हैं ना, तो पूरी लाइटें बंद हो जाती है और थोड़ी देर के अंदर तो लड़की को अंदर हिडन सेल में डाल देते हैं। ये वॉल के पीछे वो लड़की है, वो पता ही नहीं चलेगा, ऐसा हिडन सेल होता है। ओह माय गॉड। वो तोड़ के फिर निकालना पड़ता है। वो तोड़ने के लिए फिर कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। तो मतलब ये इनकी जो सिंडिकेट है क्रिमिनल्स की, वो इतनी पावरफुल है कि हमें बहुत हर एक कदम पे चैलेंज आती है, नई नई चैलेंज। सो मैम ऐसे बहुत मतलब ऐसे और भी इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे आपने वॉल से निकाला है या ज़मीन से मतलब निकाला है? हाँ, तोड़ के निकाला है, वॉल से निकाला है, ज़मीन से निकाला है, ऐसे कबर्ड के पीछे से निकाला है। ओके। और अगर मतलब आप वहाँ पे 1 या 2 आवर्स तक रहेंगे तो वो वहीं पे रहती है वो लड़कियाँ? हाँ, वहीं पे रहती है उसके अंदर। हाँ, और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है वो जब लड़की के साथ इन ब्रोथेल काउंसलिंग करते हैं तभी सब जान लेते हैं। तो लड़की बोलती है जब पुलिस आती है ना तो इसके पीछे हमें छुपा देते हैं। तो मतलब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ का हिडन सेल कहाँ पे है, ये मेजनन फ्लोर पे है या कबर्ड के पीछे है या बेड के वो साइड है या विंडो दिख रही है उसके पीछे है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हम लेके फिर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर 100 मतलब वुमेन्स है तो उसमें से कितनी % ऐसी लेडीज़ रहेंगी जिन्होंने मतलब मतलब वो विलिंगली वो कर रही है? ऐसा कोई रेशियो है? देखिए, जब पहली बार लड़की प्रोस्टिट्यूशन में आती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़कियाँ दूसरे राज्य से यहाँ आती है तो वो उसको मालूम नहीं रेड लाइट एरिया कहाँ पे है। हाँ, उसको कोई ट्रैफिकर या उसकी खुद का रिलेटिव, सबसे ज़्यादा लड़की किसके ऊपर विश्वास करती है? या तो लवर है, या तो उसका प्रेमी बन के आएगा, या तो बोलेगा मैं तेरे से शादी करूँगा, या जीजा होगा, या पड़ोसी होगा, कोई नज़दीक का आदमी उसको लाता है वो ट्रैफिकर तक, फिर ट्रैफिकर यहाँ लाता है। तो लड़की पहले बार तो फोर्स ही होती है। कोई लड़की अपनी मर्जी से कभी प्रोस्टिट्यूशन में नहीं आएगी। और इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है कि वो हिप्नोटाइज करके बोला कि तुम्हारे कपड़े निकाल दो, तो कोई लड़की अपनी मर्जी से कपड़े नहीं निकालती है अगर हिप्नोटाइज करोगी तो भी। मतलब लड़की अपनी मर्जी से कभी नहीं आती। हाँ, कोई लड़की की मजबूरी होगी, आई होगी, लेकिन फिर भी कोई लड़की अपने आप को सेक्स वर्कर करके नहीं प्राउड फील करेगी। बाद में क्या है कि वो उसकी मजबूरी फिर उसकी नीड बन जाती है, क्योंकि जब वो ब्रोथेल पे जाती है तभी घरवाली तो उसका पूरा काउंसलिंग करती है। जो पहले की जो मैनेजर, पहले जो विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो मैनेजर बन जाती है। फिर वो उनका काउंसलिंग होता है कि देखो तुम यहाँ आ गई, अभी तुम्हारा नसीब ऐसा, तुम्हारे घर वाले ने बेचा है, अभी तुम क्या मुँह लेके जाओगे गाँव में। फिर धीरे धीरे उसको एडिक्टर बना देते हैं, जैसे ड्रग एडिक्टर, अल्कोहल, चेन स्मोकर,
फिर वो लड़की उसमें ही इतनी ये हो जाती है कि फिर उसकी नीड बन जाती है सेक्स वर्क करना, क्योंकि वो पैसा आएगा तो ही वो ड्रग्स खरीद पाएगी, Right. तो ही वो ड्रिंक्स कर पाएगी, तो ही स्मोकिंग कर पाएगी। और तब तक 2-3 साल में तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, एड्स हो जाता है। तो लड़की का, इसलिए हम जब रेस्क्यू करने जाते तब हम पूछते सबको, हमारे पास तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, हम तो इतना परफेक्ट काम करते कि उस दिन लड़की के साथ बात हो जाती है कि भाई रानी हम आएंगे तो तुम ये कलर का कपड़ा पहनोगी, क्योंकि 10-15 लड़कियों में से रानी को, जो क्लाइंट ने बात किया वो क्लाइंट तो हमारे साथ आता नहीं है, तो रानी ने कौन से कलर के कपड़े पहने होंगे, तो वो कलर के कपड़े में वो रहेगी। तो हम बोलते हैं कि हम रानी को लेने आए हैं, लेकिन उसके साथ उस जितनी भी लड़कियाँ उसने लोगों को पूछते हैं। तो कभी कोई लड़की बोलती है कि आज से 5 साल पहले आए होते तो काश हम बच जाते। तो और जब भी हम वो लड़की को रेस्क्यू करते तभी जो मैनेजर ने उसका पैसा लिया है उसको हम अरेस्ट करते हैं। तो मैनेजर भी बोलती है कि आज से 10 साल पहले मैं भी तो विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, करेक्ट, तभी आपने बचाया होता तो मैं ये मैनेजर नहीं बनती थी। राइट। तो इसीलिए हम पूछते हैं, लेकिन लड़कियां बोलती है कि नहीं, हम कहाँ जाए, अभी हम क्या करें। हम उनको सब सेकंड ऑप्शन भी देते। हमारा जो वहाँ पे पंचनामा होता है, पुलिस लिखाई पढ़ाई करती है, कॉन्डोम हम इकट्ठा करते हैं, उसके वहाँ से ड्रॉर से पैसे लेते हैं। हमने जो करेंसी नोट जो पुलिस ने साइन करके दिया है वो करेंसी नोट ड्रॉर से निकली कि नहीं, मतलब ये भी कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है। तभी बाकी की लड़कियों के साथ हम काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी से निकलना चाहते हो तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। लेकिन कोई लड़की बोलती है कभी कहाँ जाए, कौन हमें समाज थोड़ी स्वीकारेगा। तो हम बताते हैं कि देखिए मुंबई दिल्ली में काम की कोई कमी नहीं है, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो कोई लड़की आती है, कोई नहीं आती है। अच्छा, कोई आ भी जाती है तो 18 साल के ऊपर की लड़की है तो वो काउंसलिंग यहाँ आने के बाद फिर उसको लगे कि नहीं मैं तो नहीं रह पाऊंगी, तो फिर वो कोर्ट को बोल के फिर वो रिलीज हो जाती है। ओके। हाँ, लेकिन हमारा रेस्क्यू फाउंडेशन ने हमेशा माइनर को टारगेट किया है और फोर्सफुली। जो लड़की बोलती है कि नहीं ये मेरी चॉइस है या मैं विलिंगली कर रही हूँ या मजबूरी से कर रही हूँ, तो हम उसको नहीं डिस्टर्ब करते हैं। ओके। सो मैम, जितने भी लड़कियों को आपने बताया कि आपने रेस्क्यू किया है, उन्हें आप कभी कभी घर भी मतलब भेज देते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को घर भेजा है, उन्होंने वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया एंड शी वाज बैक हियर? हाँ, ऐसा भी हुआ है। यहाँ से लड़कियाँ गई है, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया है या समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो बाजू में ही ट्रैफिकर रह रहा है, उसका नेबर है वो ही ट्रैफिकर है। तो लड़कियाँ बोलेगी कि हमें, इसीलिए ज़्यादातर लड़कियाँ ना वो बोलती है कि हम अपने वहाँ नहीं जाएंगे, हमारा सोर्स एरिया में हम नहीं जाएंगे। हमें रहना है तो हम ये मेट्रो सिटी में रहेंगे। अभी बांग्लादेश, नेपाल या दूसरे देश की लड़कियाँ को तो हमें वहाँ भेजना ही है, राइट। लेकिन अपने देश में अलग अलग राज्य की लड़कियां होती है, वो कोर्ट को बोलती है तो कि हमें घर नहीं जाना है, तो 18 साल तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमारे चारों शेल्टर होम में 300-400 लड़कियां हैं जो कि आज पढ़ाई कर रही है, कोई 10th, कोई 12th, कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो जो इंडियन लड़की है और नहीं जाना चाहती है तो टिल 18 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ रह के पढ़ाई कर सकती है। हाँ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रीट्रैफिक भी होती है लड़कियां, अगर उसको समाज ने नहीं स्वीकारा तो। और ये ऐसे किस्से भी हमारे सामने आए हैं। सो आपके हिसाब से ऐसा आपको लगता है कि शायद समाज को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर वो मतलब उसमें रह भी चुकी है तो भी हमें उन्हें ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए। ओके। सो मैम, अभी जैसा आपने बोला कि दूसरे देशों से यहाँ पे लड़कियाँ आती है, तो क्या इंडिया से भी ट्रैफिकिंग होता ही रहेगा, राइट? हाँ। तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस, मतलब क्या आप वहाँ से भी कभी कभी रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आ सकते हो या करते हो आप, या कोई है आपके ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स में जो करता है? नहीं, हमारे यहाँ से इंडिया से दुबई लड़कियाँ गई है और वहाँ से फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, नेपाल एम्बेसी है या इंडियन एम्बेसी है, उसको जब भी ऐसे लड़की मिलती है तो वो डिपोर्ट करते हैं और हम इन्फॉर्म करते हैं।
तो फिर हम एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ लाते हैं। फिर वो लड़की का बाकी का जो भी है उसको घर, अगर घर जाना है तो घर तक पहुँचाना, या काम पे लगना है तो काम पे लगाना। वैसे तो दूसरे देश में जो हम रेस्क्यू ऑपरेशन कभी नहीं किया, लेकिन दूसरे देश में इंडियन लड़की अगर प्रोस्टिट्यूशन में गई है, वहाँ पे अगर बिना पासपोर्ट वीज़ा पकड़ी गई है या कोई भी तरीके से, तो ऐसी लड़कियां हमारे पास आती है। लेकिन हम इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन हम क्रॉस बॉर्डर जितनी भी है नेपाल बांग्लादेश से हमें जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, यहाँ पे हम रेस्क्यू करके फिर उनको क्रॉस बॉर्डर छोड़ने के लिए जाते हैं। अमेजिंग। सकते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन से या फ्लैश ट्रेड से रिलेटेड है, जो लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली आजकल के जनरेशन को तो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, तो आप तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो 100 नंबर पे, या 103 नंबर में निर्भया को इन्फॉर्म कर सकते हो, या चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि लोग है जो कोई भी लड़की से अपनी मर्जी के खिलाफ, अगर उनके पास प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है या अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसे ही कोई लेके जा रहा है, तो वो कानून के विरुद्ध है। ये जो हमारा लॉ है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन है, वो भी काफ़ी कड़क है कि उसमें अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से या मजबूरी से अगर प्रोस्टिट्यूशन करती है तो वो इलीगल नहीं है। लेकिन कोई लड़की को प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, मतलब उसका जो पैसा है वो कोई और ले रहा है, तो वो इलीगल है। इसलिए कानून में लॉफल्स बहुत है, लेकिन अगर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे आसपास में कहीं पे भी लग रहा है कि कहीं मसाज पार्लर चल रहा है, कहीं स्पा चल रहा है, या डांस बार या बियर बार या होटल लोजी सिवन ढाबा, कभी वहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। अभी तो एक दूसरा निकला है, नचनिया। अभी तो ऑल ओवर इंडिया में ये शुरू हो गया है कि बोलते ही नचनिया, वो शादी में डांस करते हैं। अभी यूपी, बिहार, हरियाणा सब जगह, और फिर बाद में उसकी बोली बोली जाती है। वो लड़की का नथ उतारना बोलते हैं कि लड़की को ऑक्शन होता है, और जो ज़्यादा पैसा बोलता है उनके साथ वो लड़की को जाना पड़ता है, और फिर बाद में वो लड़की प्रोस्टिट्यूशन में जाती है। तो ओके, सो आपको सपोर्ट आई गेस गवर्नमेंट से है, राइट, फॉर ऑल दिस। सो आप कुछ शेयर कर सकती है, जैसा लाइक किस वे में वो आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक थ्रू ग्रांट्स या टू एनी अदर मीडियम? गवर्नमेंट ने हमारा शेल्टर होम चलाने के लिए लाइसेंस दिए है। गवर्नमेंट का पुलिस प्रोटेक्शन है हमें, हमारे सभी शेल्टर होम में। गवर्नमेंट का ग्रांट हमें है, वो टाइम से नहीं आता है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स में हमें हेल्प चाहिए, फॉरेन नेशनलिटी को उनके देश भेजना है, तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या जहाँ जहाँ से भी हमें परमिशन लेनी है, वहीं से हमें परमिशन मिलती है। यहाँ से हमें बांग्लादेश, नेपाल या कहीं पे भी छोड़ने जाना है तो एस्कॉर्ट है, पुलिस प्रोटेक्शन है, वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के पास जो मिसिंग पर्सन ब्यूरो है, उनके पास जो भी मिसिंग कंप्लेन आती है तुरंत हमारे साथ शेयर करते हैं। और हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की स्टेट एडवाइजरी कमेटी में मेंबर है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में मेंबर है, हम टास्क फोर्स में मेंबर है, क्रॉस बॉर्डर टास्क फोर्स में। तो और हमारे बार बार की रिक्वेस्ट या डिमांड की वजह से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पुलिस स्टेशन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एक स्पेशल ब्रांच शुरू की है। और अभी 2-3 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में सब जगह पे न्यूज़ आया है कि हमारी रीट पिटीशन के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, और 700 करोड़ रुपये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को, समझो व्हीकल है या स्टाफ रिक्रूटमेंट है, लेडी कांस्टेबल को रिक्रूट करना, उसके लिए दिया। तो गवर्नमेंट से हमें काफ़ी हेल्प मिली।
सो मैम आप ये जो फाउंडेशन चलाते हैं, आपको यहाँ पे हमेशा शायद फंड्स की या इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आपको कैसे हेल्प होता है? मतलब बाहर से भी आपको क्या उतना हेल्प मिलता है अदर देन गवर्नमेंट, या आपको मतलब भी नीड रहता है? नहीं, हमें फंड की बहुत नीड होती है। ये कोविड के बाद तो इतना हमें प्रॉब्लम आ रही है कि फंड क्राइसिस है, क्योंकि हमारे जो डोनर थे वो डाइवर्ट हो गए कोविड रिलीफ एक्टिविटी में, तो वो हमें फंड क्राइसिस आई। दूसरा कि कोविड के बाद गर्ल्स और वुमन इतने वनरेबल हुई है कि हम 30 साल में जितना रेस्क्यू नहीं किया था, अभी लास्ट 2 साल से हम इतना रेस्क्यू हो रहे हैं, लड़की और महिलाएं। तो हाँ, हमें फंड की हमेशा ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे पास कम फंड है, लेकिन अगर हम एक लड़की को रेस्क्यू करने गए और वहाँ पे 50 लड़की है, बोलती हमें यहाँ निकलना है, तो फिर हम वो नहीं बोल सकते कि हमारे पास वो सब फंड नहीं है। तो इसलिए हम अपील करते हैं सभी लोगों को कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम काइंड में डोनेशन लेते हैं, हम चेक से लेते हैं, हम ATG की रिसीप्ट देते हैं, तो आप कोई भी तरीके से आप हमें फंडिंग कर सकते हैं। आप वॉलंटियर हमारे साथ वॉलंटियर बन सकते हैं, जैसे कि हमारी रेस्क्यू टीम मेंबर बन सकते हैं। हमारे लीगल में हमें पंचा और विटनेस चाहिए, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे लियो क्लब हमें हेल्प कर रही है, तो जैसे हम कभी रिपेटेशन के लिए हमें ज़्यादा एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर किसी के पास कुछ एक्सपर्टी है आर्ट एंड क्राफ्ट की, पेंटिंग की, तो वो भी हमें हमारी बच्चियों को सिखा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन यस, ये जो काम है वो इतना इजी नहीं है, और हम जो काम कर रहे हैं वो क्यूट चैरिटी नहीं है। यहाँ पे आम लोग हमारे यहाँ पे फंडिंग करने के लिए नहीं आते, क्योंकि अनाथ आश्रम नहीं है। वो बोलते हैं कि ये अनाथ आश्रम है, हम बोलते हैं नहीं, अनाथ आश्रम नहीं है, लेकिन अंडर प्रिविलेज गर्ल है ये, तो उनको जब पता चलता है कि ये तो सेक्स वर्कर है, इसलिए हमें यहाँ पे आसपास के लोग या जो लोग मंदिर में या कहीं पे भी डोनेशन देते, वो लोग अनाथ आश्रम में या हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रम में देते हैं, लेकिन हमारी संस्था में डोनेशन देने के लिए आते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उनको फोटोग्राफी अलाउ नहीं, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, डायरेक्ट लड़की के साथ बात करना अलाउ नहीं है, डायरेक्ट डोनेशन देना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो हम ये अपील करते हैं कि आप अगर कोई भी तरीके से हमें हेल्प करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही हेल्प कर सकते हैं, काइंड में आप डोनेशन दे सकते हैं, और आप वॉलंटियर सर्विस दे सकते हैं, लेकिन वॉलंटियर कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए। ओके। और अगर आप किसी को वॉलंटियरिंग में इंटरेस्टेड रहेगा तो कैसे कांटेक्ट करेगा? वो ईमेल कर सकते हैं, और फिर उनके पास जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपर्टी है वो अगर हमें चाहिए, तो फिर उनका एक इंटरव्यू होता है। उनको भी, जो वॉलंटियर आते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, और उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी साइन करनी होती है, उनको हर एक चीज़ यहाँ पे कितना सेंसिटिव इश्यू के साथ हम डील कर रहे हैं वो समझाया जाता है, उनके वो तरीके से काम करना पड़ता है। ठीक है। सो मैम, अभी आपने एक इंसिडेंट ऐसा बताया था जिसमें आपने रेस्क्यू किया था और आपको हमेशा याद रहेगा। क्या कोई ऐसा एक इंसिडेंट है, ऐसा दूसरा कोई इंसिडेंट है जो काफ़ी मतलब आपके और आपकी टीम के लिए काफ़ी शॉकिंग रहा हो इतने सालों में ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन? वो मुंबई में, इम्पोर्टेंटली मुंबई में हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन एक मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था कि एक लड़की है जिसको बेचा है उसकी नानी ने, उसके माँ बाप नहीं है, और वो लड़की वहाँ से निकलना चाहती है, और वो लड़की मेरे साथ फ़ोन पे बात किया कि मुझे यहाँ से बचाओ, और हम रेड करने के लिए गए थे, और तभी भी वाइट हाउस करके बियर बार का मिला लोग, और वहाँ पे भी हमला हुआ था, और जो हमारा जर्नलिस्ट दोस्त था उसमें मारा गया। ये कुछ महीनों पहले की बात? नहीं, बहुत सालों पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, 6-7 साल हो गए इसके पहले की बात है। और बाद में फिर वो लड़की को तो हमने कैसे भी करके रेस्क्यू किया, बाद में
उसको भी रिपोर्टर बनाया और आज वो एज ए जर्नलिस्ट काम कर रही है। वाह, amazing. तो मैम एक लास्ट मैसेज जो आप सबको देना चाहती हो कि लाइक आपकी तरफ से कोई अपील या कोई एक मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहते हो, स्पेशली यूथ को, क्योंकि हमारा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और आप ऐसा कुछ बोलना चाहती हो कि उनको भी मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ अ मैसेज जो आपको देना है। मैं यूथ को और रोटरी क्लब के जो मेंबर हैं उनको अपील करती हूँ, खासकर जो लड़के हैं उनको, कि आप डिमांड मत करो। अगर डिमांड है तो सप्लाई है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेक्स वर्कर जिसको आप बोलते हैं उनको अपनी मर्जी से नहीं आती है, उनके पास फोर्सफुली करवाया जाता है। आज तक हमें अभी पता नहीं है कि सेक्स वर्क और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या डिफरेंस है। उनको लगता है वो सेक्स वर्कर है, लेकिन वो सेक्स वर्कर नहीं है, वो विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो एक तो डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। दूसरा कि आप आँख कान नाक सब खुला रखें कि अगर आपके आसपास में भी बहुत सारी चीज़ें होती होगी जो सही में आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप ऐसे कहीं पे भी ऐसा मिले। और आज यूथ जो जा रहा है, अभी तो ऑनलाइन सब चल रहा है, ऑनलाइन सेक्स की डिमांड जो चल रही है उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी घर की लड़कियाँ फंस रही हैं। अभी ड्रग, खास तो ड्रग एडिक्शन, जो लड़कियाँ कॉलेज में जाती हैं उसको कैसे भी करके ड्रग दिया जाता है, और जब एक बार ड्रग एडिक्टर बन जाती है तो बाद में उसको प्रोस्टिट्यूशन में डालना बहुत ईजी होता है। तो ये सभी चीज़ों में ध्यान देना है। आज इतना हमारा जनरेशन ये इंटरनेट की वजह से, अभी पोर्नोग्राफी में भी बहुत सारी लड़कियाँ जो फंस जाती है, उसको आइडिया भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और कहीं पे भी यूथ को लगता है कि यहाँ पे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है या एब्यूज़ का केस है, तो तुरंत वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।